everyone, good morning all of you. So student, in previous video we discuss about lesson number 13 sound. Yes, हमने पढ़े थे कि कोई भी साउंड को अगर प्रोपोगेशन होना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट एप्लीट्यूड एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. यस, सो स्टूडेंट, टुडे वी सी audible and inaudible sounds, and second topic is that noise and music, and third topic is that noise pollution. Okay, so student, first we see about audible and non or inaudible sounds. Okay, so let's see audible and inaudible sounds. Time period and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known as the vibration. This motion is called the oscillatory motion. So to and fro motion को ही हम क्या कहते हैं, oscillatory motion. So student, we have already learned that easier classes about the oscillatory motions and its time period. The number of oscillation per second is called the frequency. जो जितने oscillation होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, frequency per minute में. Okay, frequency is expressed in hertz, or its symbol is hertz. The frequency of 1 hertz is oscillation per second of an object 20 times in 1 second. What would be frequency? आपको निकालना है. You can recognize many familiar. So student, अभी aptitude क्या होता है? Aptitude and frequency are the two more important properties of any sound. Okay, can we differentiate sounds of the basic on their amplitude and frequencies? So loudness and pitch. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है लाउडनेस और पिच को समझने के लिए. So loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, the amplitude become twice, loudness increase by the factor of 4. The loudness is expressed in unit called decibel. है ना, dB मतलब क्या होता है, डेसिबल. एंड द फॉलोइंग टेबल इज शोन द आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्स. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साउंड का जो डेसिबल है वो कितना रहेगा. नॉर्मल ब्रीदिंग का डेसिबल कितना रहता है, 10 डेसिबल. सॉफ्ट विस्पर का 30, नॉर्मल कन्वर्सेशन का 60, बिजी ट्रैफिक का 70 एंड एवरेज फैक्ट्री का 80. सो अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल. तो 80 डेसिबल तक की जो साउंड रहता है वो कैसा रहता है, पेनफुल रहता है. ओके, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एप्लीट्यूड. When the amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produces feeble. So student, amplitude पे डिपेंड करता है कि साउंड कैसा रहेगा. अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो साउंड भी कैसा रहेगा, फीबल रहेगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा. ओके, सो कंपेयर द साउंड ऑफ अ baby with that the adult. There is any differences? Even if two sounds are equally loud, they differ in the same way. So let us now see. The frequency of the determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of the vibration is higher, we say that the sound shrill and has a lighter pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. तो स्टूडेंट, पिच के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट विद द लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, ये देखो ड्रम, इट प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड. ऑन अदर हैंड, विशल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर प्रोड्यूस साउंड ऑफ द हायर पिच. यस, तो वो विशल की जो आवाज़ रहती है वो ड्रम से ज़्यादा रहती है. देन अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, है ना, बर्ड भी चिल्लाती तो कितना आवाज़ आता है. तो इस प्रकार एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट. डू यू find any differences in their voice? Can you say the frequency of the voice of the child is higher than the adult? So usually voice of the woman has higher frequency than that of a man. तो मैन से ज़्यादा जो वुमन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है. ओके, देन ऑडियोबल एंड इनऑडियोबल साउंड्स. तो ऑडियोबल साउंड्स क्या होता है, we know that the need a vibrating body for the producing of the sound. Can we hear the sound of all vibrating body? In fact, the sound frequency less than the 20 vibration per second, 20 hertz, cannot be detected by the human. तो 20 hertz से अगर नीचे रहेगा फ्रीक्वेंसी तो वो हम humans सुन नहीं सकते. yes, we cannot be detected by the humans here. Such sounds are called the inaudible sound. तो इसी साउंड को हम क्या कहते हैं, inaudible sounds. और ऑडियोबल साउंड्स क्या होगा, ऑन द हायर साइड द साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 vibrations per second or 20 kilohertz are also not audible to the human ear. तो ये भी हमारे ह्यूमन के लिए 20 किलोहर्ट्ज़ भी ह्यूमन्स को सुनाई नहीं देगा. thus the human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20
1000 हर्ट्स। तो ह्यूमन्स को कब सुनाया जाएगा? 20 से 20 हर्ट्स अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ही। ओके, देन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। सो स्टूडेंट, आपको पता है नॉइज़ एंड म्यूज़िक है ना। सो अदर हैंड यूज है साउंड। नॉइज़ क्या होता है कि सपोज construction was going in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound? No. वो आवाज़ कैसे रहता है? एकदम नॉइस रहता है। अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइस। ओके, म्यूजिकल साउंड मतलब जो हमारे ईयर्स को सुनने में अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। यस, इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, जो हम उसको अच्छे से सुन सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजिकल साउंड। Sound produced by the harmonium is a musical sound. The stretching of a sitar also give out the musical sound, but if musical sound become too loud, it will be melodious. अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम melodious कर सकते हैं, बोल सकते हो। ओके, नॉइस पोल्यूशन। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो अनवांटेड साउंड को ही हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल किससे होता है? जैसे कि व्हीकल से, पोल्यूशन ऑफ साउंड्स व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स। तो इस सबसे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियस एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लायंस, डिजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये सबसे क्या होता है? जिससे साउंड आती है ज़्यादा, उससे क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? तो नॉइज़ पोल्यूशन से क्या हार्म्स होता है? डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग दे मे कॉजेज द मेनी हेल्दी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो देखो, नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ स्लीप, है ना, नींद नहीं लगना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंग्जाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज बाय द नॉइज पोल्यूशन। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू गो लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो अगर ज़्यादा साउंड अगर सुनते तो क्या होता है? उससे बहरे बे हो जाते हैं, उनको कुछ भी आवाज़ नहीं आती है ना। देन मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अभी नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस for example must be installed in aircraft, engineers, transport vehicles, industrial machines and some appliances. How can we noise pollution be controlled in a residential area? तो residential area में कैसे कर सकते हैं? All noise operation must be conducted away from any residential area. Noise producing industry should be set up away from the such areas. जो एरिया है वहाँ से इंडस्ट्री को दूर रखना चाहिए। और टीवी और म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन लो वॉल्यूम्स। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम में लो आवाज़ में सुनना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट एंड दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। पेड़ काटने की वजह से जो साउंड्स आते हैं उससे भी क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट हियर दिस लेसन इज कम्प्लीटेड। सो टिल देन बाय।